किरण रिजिजू जो यहाँ आए थे, उनका इस्तेकबाल करके उन्होंने पूरे मुल्क के मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि जो आपके साथ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हुआ, जो वक्फ में अमेंडमेंट लाया गया, उसके साथ यहाँ की सरकार है, उसके खिलाफ नहीं है। वो लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करें जिन्होंने बीजेपी को यहाँ एंट्री दी, जिन्होंने आज तक 2016 की कत्ल गारत के लिए जम्मू कश्मीर के आवाम से माफी नहीं मांगी। Aam Aadmi Party MLA Mehraj Malik was allegedly beaten up outside the Jammu and Kashmir Assembly on Wednesday over remarks he purportedly passed against former Chief Minister and late PDP leader Mufti Muhammad Saeed, as well as for mocking protests by the BJP members. Trouble erupted when Malik was talking to some media persons and some PDP leaders from Kashmir, including Arif Amin, caught hold of him for the derogatory remarks. A day earlier too, the AAP legislator was involved in an altercation with the same PDP leaders within the assembly complex. On Wednesday, however, the altercation turned into a scuffle. BJP legislators who were protesting nearby and were already angry with Malik for describing their protests as Jamwara, as in crowd, also joined in. Security staff standing within the assembly complex intervened and took Malik inside the lobby, but he allegedly passed some more remarks against the BJP and the late PDP leader, prompting legislators from both parties to catch hold of him. During the scuffle, some glass tables inside the lobby were broken. Assembly marshals then came to Malik's rescue and pushed him inside the house, which had already been adjourned by the speaker till 1 p.m. The BJP and PDP members tried to follow him inside, but they were stopped by the marshals, who locked the doors. Walking over the treasury benches, Malik alleged that he had been attacked by the BJP, much to the shock of NC legislators such as Cabinet Minister Sakina Etu. Malik was heard asking the NC members that the Superintendent of Police, Secretariat Security, be summoned to the house as he was also present during the attack, but did nothing. Outside the assembly, BJP legislators accused Malik of being a troublemaker, alleging that he always uses derogatory and abusive language against leaders of other parties. They asked the speaker to initiate action against him for his behavior. Malik, however, denied having said anything against the BJP and added that they joined PDP members only to seek their support in the house. Meanwhile, Mehbooba Mufti and Omar Abdullah attacked each other over the chaos in the assembly. Here is what they said. जो पिछले 3 दिन से असेंबली के अंदर रूलिंग पार्टी का एक ड्रामा चल रहा है, और उसके अलावा जो ट्यूलिप गार्डन में हमने देखा, ये शर्मनाक है। खासकर जो इस मुल्क के मुसलमान हैं, जिनके ऊपर इस वक्त बीजेपी का पूरे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, उनको यहाँ की लीडरशिप उमर साहब ने, फारूक साहब ने मिलके, जो वहाँ से मिनिस्टर आए थे किरण रिजिजू जो यहाँ आए थे, उनका इस्तेकबाल करके उन्होंने पूरे मुल्क के मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि जो आपके साथ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हुआ, जो वक्फ में अमेंडमेंट लाया गया, उसके साथ यहाँ की सरकार है, उसके खिलाफ नहीं है। जिससे मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो मुसलमान हैं, उनकी हिम्मत ऑलरेडी जो टूट चुकी है, जो एलिनेटेड फील करते हैं, जो मुसीबत में फील करते हैं, मुझे लगता है उनके लिए ये बहुत ही बुरा पैगाम था जो यहाँ से चला गया। और असेंबली में हम ड्रामा देख रहे हैं कि रूलिंग पार्टी के लोग शोर मचाते हैं, और इस शोर मचाने की और भी एक वजह है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 3 बिल क्लियर किए थे। एक तो जो डेली वेजेस को रेगुलराइजेशन का, जो बेचारे सालों साल से बिना तनख्वाह के बहुत थोड़ी रकम पे काम कर रहे हैं, वो बिल क्लियर था। जो ज़मीन, गरीब लोगों को ज़मीन देने के लिए जो वहीद परा साहब ने और एक बिल लाया था, उसको एलजी ने क्लियर किया था।
और तीसरा बिल शराब के ऊपर बैन लगाने का बिल वो भी क्लियर कर लिया था। तो इन तीनों तमाम बिल से बचने के लिए डेली वेजेस को रेगुलराइज करना, गरीबों को जमीन देना और शराब पे पाबंदी, इन बिल्स के साथ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए असेंबली में हंगामा किया गया। और ये हंगामा इसलिए भी किया गया ताकि जिस तरह से इस्तेमाल किया गया किरण रिजिजू का यहाँ पर, जिसने ये अमेंडमेंट बिल लाया पार्लियामेंट में, और जिस तरह फारूक साहब और उमर साहब ने उनका यहाँ इस्तेमाल किया, उससे ध्यान हटाने के लिए असेंबली में पिछले 3 दिन से तमाशा हो रहा था। और आज हमारे साथ यहाँ हमारे एडवोकेट मजीद साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम भी इस जो वक्फ बिल पे अमेंडमेंट लाया गया उसको चैलेंज करेंगे। हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। अगर हम लोगों की बात हाउस के अंदर नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। अब चलिए, ये सेशन खत्म हुआ। आगे जाके इस बिल को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रवैया रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो करना होगा, उसके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोर्ट्स पर्सन है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है वो इसके बारे में आपको बताएंगे। अपनी बात, क्योंकि हाउस के अंदर कुछ अजीब अजीब बातें हुई, मैं था नहीं, लेकिन मेरे खिलाफ आज वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ के दूध और टॉफी की बात की, जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ के जम्मू कश्मीर की तबाही की। हाउस के अंदर उन लोगों ने मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया जिन्होंने क्रिकेट बैट बांट के यहां के नौजवानों को गुमराह करके उस वक्त के होम मिनिस्टर के प्रोग्रामों में घसीट के लिया। आज हमारी अगर ये हालत है तो ये उन लोगों की बदौलत जो मेरे खिलाफ उंगली उठाने की बात कर रहे हैं। ये सही है कि 2 दिन पहले मैं अपने वालिद साहब को ट्यूलिप गार्डन ले गया था। ये इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त एक मरकजी वजीर मौके पे मौजूद थे। हमारी वहां हेलो हाई हुई, उन्होंने मेरे साथ तस्वीर खींचना चाहा तो मैं क्या इनकार करता, मैं क्या बदतमीजी करता। उन्होंने तस्वीर खींचना चाहा, मैंने उनके साथ तस्वीर खींची। लेकिन अब उस चीज को वो लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करें जिन्होंने बीजेपी को यहां एंट्री दी, जिन्होंने आज तक 2016 की कत्ल-गारत के लिए जम्मू कश्मीर के आवाम से माफी नहीं मांगी। मुझे लगता है ये सरासर गलत है। उनको पहले अपने गिरेबान में झोंक के देखना चाहिए कि उनकी क्या हरकतें रही, उनके बीजेपी की क़यादत के साथ क्या रिश्ते रहे, उन रिश्तों का जम्मू कश्मीर को क्या खमियाजा भुगतना पड़ा, उसके बाद मेरे ऊपर उंगली उठाएं।